अच्छा जी, ग्रुप्स पीरियड्स को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, आइंस। बेसिकली देखो, जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इन अ प्रोडक्ट टेबल फ्रॉम ग्रुप 1 टिल ग्रुप 8, so we have made electronic configuration of all these elements. I mean, for first 20 elements of the product table, hydrogen's electronic configuration is 1, helium is 2, lithium is 2 comma 1, beryllium is 2 comma 2, boron is 2 comma 3, carbon is 2 comma 4, nitrogen is 2 comma 5, then 2 comma 6 for oxygen, chlorine and neon is 2 comma 8. Sodium is 2 comma 8 comma 1, magnesium is 2 comma 8 comma 2, aluminium is 2 comma 8 comma 3, silicon is 2 comma 8 comma 4. Phosphorus is 2 comma 8 comma 5, sulfur is 286, chlorine is 2 comma 8 comma 7, argon is 2 comma 8 comma 8, potassium is 2 comma 8 comma 8 comma 1, and calcium is 2 comma 8 comma 8 comma 2. ठीक है। तो यहाँ तक देखो, जो एलिमेंट्स है ना, वो एक्चुअली जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, in order to get stable, they want to have 8 electrons in their outermost shell. अभी हम हीलियम की बात करते हैं, but rest of the other elements of group 8, they all have 8 electrons in their outermost shell. ठीक है, and group 8 is given the name as noble gases. Actually जितने भी elements के atom है ना, they want to have 8 electrons in their outermost shell. जब उनके outermost shell में 8 electrons हो जाते हैं तो they feel stable. अब stability क्या है? Stability is having 8 electrons in outermost shell or 2 electrons in outermost shell. Some elements get stable with 8 electrons in outermost shell, whereas some atoms of other elements, they get stable with 2 electrons in their outermost shell. कुछ पूछना है किसी को? देखो, let me define stability first. Stability क्या होती है for atoms? It is having two or 8 electrons in valence shell. Valence shell is also known as outermost shell. The last shell होता है किसी भी atom. Some atoms they get stable with 2 electrons in their outermost shell. उसको हम कहते हैं डुप्लेट रूल. Whereas most of the elements they get stable having 8 electrons in their outermost shell, and this is known as octet rule. Duplet rule is having 2 electrons in valence shell to get stable. Octet rule is having 8 electrons in valence shell to get stable. But sir, doesn't that depend on the number of shells in an element? Yes, it depends. I'm gonna tell you which elements they get stable with 2 electrons in their outermost shell. मैं बता देता हूँ. ठीक है, obviously it depends. So all those elements, या बल्कि हम नाम ही याद कर लेते हैं ना. कौन से एलिमेंट्स है which get stable with 2 electrons in their outermost shell or that follows duplet rule? Helium. Yes, hydrogen, helium, of course,
Helium is already having 2 electrons in its outermost shell. It is already stable. Hydrogen, in order to get stable, it needs 1 more electron. Then we have lithium. It has 1 electron in its outermost shell. Beryllium from group 2. And boron from group 3. Whereas all other elements, apart from hydrogen, helium, lithium, beryllium and boron, all other elements, they get stable with 8 electrons. इसके बारे में all ये लिख लो बस, all other elements. They get stable having 8 electrons in their outermost shell. क्लियर है? यहाँ तक लिख लिया है सबने? आगे बढ़े। सर ये लिथियम के नीचे क्या लिखा हुआ है? सॉरी, सर ये लिथियम के नीचे क्या लिखा हुआ है? इसके नीचे बेटा लिथियम, लिथियम सर, लिथियम। लिथियम के नीचे बेरिलियम लिखा हुआ है। और उसके नीचे बोरॉन। उसके नीचे बोरॉन है। बेरिलियम इज BERYLLIUM। ओके सर। आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा, अब देखो हाउ एलिमेंट्स अचीव स्टेबिलिटी ना, हाउ एटम्स of different elements achieve stability. So they can do 3 things. Some elements, some atoms of some element, they lose electrons to get stable. And atoms of some elements, they gain electrons to get stable. And atoms of some elements, they share electrons to get stable. अच्छा, ये केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में नहीं आता? यस, बिल्कुल केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आता है। हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट वहीं पे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जो चीज सीखना चाह रहे हैं उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड हम अब डिस्कस कर रहे हैं। So whenever atom of different elements, they either lose electron, gain electron or share electrons, they are actually undergoing chemical reactions. When atoms undergo chemical reactions, they form chemical bonds. And obviously, we will be studying this in detail in our next chapter, which is chemical bonding. But for now, you have to understand that some of the atoms, they lose electrons to complete their octet or duplet, and some electrons they gain electron to complete their octet or duplet. ठीक है, तो ये जो लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, हमें उसको सीखना है। दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई एम सॉरी, स्पेलिंग सही कर ले। तो एटम्स of different elements when they lose or gain electrons, they
complete their electronic configuration. अब इस बात का मतलब समझते हैं आपने। देखो प्रोडक्ट टेबल में जो हमारे पास ग्रुप 8 है, Group 8 we have helium with electronic configuration of 2. Then we have neon, atomic number is 10. It's 2,8. And then we have argon, atomic number 18, electronic configuration 2,8,8. जो helium है ना, they are already stable. All group elements they are already stable. और सब लोग सारे एलिमेंट्स जो है ना बाकी प्रोडक्ट टेबल के, वो सब ग्रुप 8 के एलिमेंट्स की तरह बनना चाहते हैं, जो ऑल्सो वांट टू हैव आइदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अब जो एलिमेंट्स हीलियम को फॉलो करते हैं उनमें हाइड्रोजन आ जाता है। अब हाइड्रोजन की हम लोग बात जो है ना वो नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे ज्यादा डिटेल में। लेकिन जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं लाइक लिथियम है, तो लिथियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसी तरह ग्रुप 2 में वी हैव बेरिलियम with 2 electrons in its outermost shell. In group 3 में we have boron with 3 electrons in its outermost shell. In group 5 we have group 4 we have carbon with 4 electrons in its outermost shell. ये जो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन है, ये सारे फॉलो कर रहे होते हैं हीलियम को। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कर ले हम किसी तरह अपने। और जो बाकी एलिमेंट्स हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारे बाकी नियॉन और आर्गन को फॉलो करना चाहते हैं कि हमारे भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अब ये काम करने के लिए ये लोग करते क्या हैं, देखो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है ना, इसमें फर्स्ट वी हैव लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,1. So lithium have 2 options. Either it gains 7 electron in its outermost shell because there is already 1 electron present. In order to have a complete octet, lithium needs 7 electrons, जो कि lithium से नहीं हो सकता। मतलब lithium के बस की बात ही नहीं है। How can lithium gain 7 electron? Possible नहीं है उसके लिए। अब lithium क्या करे? तो lithium क्या करता है, instead of gaining 7 electrons, lithium loses its 1 electron from its last shell. वो अपने लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन ही लूज कर देता है। अब होता क्या है उससे, देखो पहले जो उसका सेकंड लास्ट शेल था, आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो लास्ट शेल है वही खत्म हो गया ना। नाउ इट्स सेकंड लास्ट शेल बिकम्स इट्स लास्ट शेल। और दुनिया को तो यही दिख रहा है कि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और लिथियम भी हीलियम की तरह स्टेबल हो गया है। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल नहीं होता, बल्कि अपने आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। नाउ इट्स सेकंड लास्ट शेल बिकम्स इट लास्ट शेल, और लगता है कि वो स्टेबल हो गया है। ये करने से इफेक्ट क्या आता है इस पे, देखो लिथियम के पास प्रोटॉन्स कितने थे, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, तो इट मींस इट हैज 3 प्रोटॉन्स, एंड प्रोटॉन्स हैव अ चार्ज ऑफ पॉजिटिव, एंड लिथियम एटम हैज 3 electrons with a charge of -3. अगर मैं इस पे नेट चार्ज पूछूं आपसे, नेट चार्ज मतलब रिजल्टेंट चार्ज, चार्जेस क्या होते हैं, कैंसिल करते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को, तो +3 -3 क्या हो जाएगा, 0। दैट्स व्हाई लिथियम एटम है 0 चार्ज। 0 चार्ज हम क्या करते हैं, लिखते नहीं है ऊपर, जब कुछ नहीं लिखा हुआ चार्ज की जगह पे जो ऊपर हम पावर लिखेंगे वो चार्ज होता है बेसिकली केमिस्ट्री में। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मींस के चार्ज 0 है। However, when lithium atom loses 1 electron, its protons will stay same. Number of protons will stay same because protons are present in the nucleus. Lithium atom has lost an electron, not a proton. The protons will stay same, +3. However, after losing 1 electron, lithium atom is left with only 2 electrons. Now, if you find the net charge, this should be +3 -2, which is +1. So after losing 1 electron, lithium atom will get a charge of +1. Right? देखो प्लस लिख दिया ना सिर्फ, that is enough. 1 लिखने की जरूरत नहीं।
if nothing is written, by default it means कि वो 1 ही है. So before losing an electron, we were calling it lithium atom. After losing an electron, this would be called as lithium ion. समझ आई? Ions basically क्या होते हैं? Ions are charged particles. कोई भी एटम जब उसके ऊपर कोई चार्ज आ जाएगा, that would be called as ions. Some atoms they lose electron and some atoms they gain electron. So ions can be of two types, either positively charged or negatively charged. Ions can be of two types, positive or negative. Positively charged ions are known as cations, and negatively charged ions are known as anions. ठीक है, anions और cations. अभी हमने सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज आयन की एग्जांपल देखी है, कैटाइन की देखी है और लिथियम की. If we see another example from group 1, the second element after lithium from group 1 is sodium. If we talk about sodium atom, so sodium has a symbol of Na with 11 protons and 11 electrons. If we make its electronic configuration, that would be 2, 8, 1. In order to get stable or to complete its octet, sodium also have two options. Either it can gain 7 electrons or it can lose 1 electron from its outermost shell. तो जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकते. Instead, they loses 1 electron from their outermost shell, due to which their second last shell now becomes their outermost shell. उनका second last shell था वो outermost shell बन जाता है और उनको लगता है कि वो stable हो गए. बस that's it. However, during losing 1 electron, they gets a charge of +1. प्रोटॉन जो होते सोडियम एटम के पास वो 11 प्रोटॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन जो होते वो भी 11 थे. दोनों का चार्ज क्या होता है? अपोजिट होता है. तो +11 -11 is 0. However, when sodium atom loses 1 electron, its proton will stay same, but its electron will become 10. तो -10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. नेट चार्ज would be +11 -10, that would be equals to +1. The sodium atom when loses an electron, it gets a charge of +1. And then we do not call it a sodium atom. We call it sodium ion. समझ आई बात? Sir, एक मिनट. हिबा आप कुछ पूछ रहे हो? पहले आप पूछ लो. yes, sir. Sir, you said that lithium wants to like complete its valence shell and wants to be like helium, but it's like valence shell is already completed. Its valence shell has 1 electron only. It would be completed by having 2 electrons at least. Okay, and in this sodium ion, like can't it like gain one more electron? No, sodium atom, in order to get stable, it has to have 8 electron in its outermost shell. It means sodium atom has to gain 7 electrons. Okay. 7 gain करेगा तो 8 होंगे. अब सोडियम आयन जो बना है ना आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल हो गया. अब ये फिर गेन नहीं करेगा, ये वापस गेन नहीं करेगा, क्योंकि ये अब स्टेबल हो गया है ना. तो ये इसको ये ज्यादा खुश है आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज अब जो उसका पहले सेकंड लास्ट शेल था, अब दुनिया को तो उसका वो आउटर शेल दिख रहा है ना. अब सब क्या समझेंगे? सोडियम आयन का ये आउटर मोस्ट शेल है एंड इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, एंड पीपल विल थिंक दैट सोडियम इज नाउ स्टेबल. नोबल गैसेस की तरह. Why noble gases are known as noble gases? Noble means अच्छा. So all of the other elements of the periodic table, they want to have their electronic configuration like group 8 elements.
Okay, sir. And sir, how we are given questions from this topic? I will do the question now. Question Okay. ऐसे ही होते हैं, if you have to find the number of protons and electrons, ठीक है, इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके। Okay, नेक्स्ट thank क्लास में हम you. इसके सारे क्वेश्चंस ही करेंगे, बल्कि आज ही स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस। अच्छा, मीना, यू आर आस्किंग lithium, why lithium is losing electron, no? Lithium is losing electron because it wants to have a duplet, मतलब वो अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसको या 2 चाहिए। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल करने में ना लिथियम की रेंज से बहुत बाहर है, मतलब लिथियम कैन नॉट अफोर्ड टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। देखो एक बात समझो, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, and why they are revolving around the nucleus? Because electrons are negatively charged and nucleus is positively charged due to the presence of protons in the nucleus. ये protons हैं जो electrons को revolve करवा रहे हैं। अब lithium has 3 protons in its nucleus. Let's say अगर हम lithium को उठा के 7 electrons दे भी दें तो lithium hold ही नहीं कर सकता उसको, उसके पास 3 protons है, वो 3 protons अगर आप मैं further 7 electron दे दूंगा तो there will be total of 10 electrons with lithium. उसके 3 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन डील नहीं कर सकते, हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए लिथियम हैज टू हैव लूज द इलेक्ट्रॉन। सेम गोस फॉर सोडियम। आप कहोगे सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दें, ठीक है करवा दिया आपने, बट सोडियम हैज 11 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। अगर आपने 8 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दिए तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे सोडियम एटम के पास, और वो 18 इलेक्ट्रॉन्स को 11 प्रोटॉन्स डील नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाता है। मतलब 1-2 का फर्क आता तो समझ आता ना, यहाँ पे तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए, 2-3 तक फिर समझ आता, 7 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर उसका न्यूक्लियस डील नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है मीना? अच्छा, इसके बाद अगर हम ग्रुप 1 में एग्जांपल है पोटेशियम की, potassium atomic number is 19, it has like 19 electrons, so electronic configuration is 2,8,8,1. potassium atom again it cannot gain electron ना। ग्रुप 1 के एलिमेंट, अब आपको याद भी रखनी है ये बात कि ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट दे लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड दे गेट्स अ चार्ज ऑफ +1। तो जब पोटेशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वी वुड कॉल इट पोटेशियम आयन, and the electronic configuration would become 2,8,8 and it will get a charge of +1. Its proton number will of course stay same, but it is getting a charge of +1 because it is losing 1 electron. Electrons are negative. When you are losing 1 electron, you will get a positive charge. Okay, let's see group 2. Group 2 में let's say we have magnesium. Magnesium's atomic number is 12, electronic configuration is 2,8,2. This is magnesium atom. In order to get stable, magnesium can either gain 6 electrons or lose 2 electrons from its valence shell. Again, group 2 वाले elements भी 6 electron gain करके hold नहीं कर सकते. So it's best for magnesium that it loses 2 electrons from its valence shell. तो magnesium क्या करेगा? It will lose 2 electrons from its valence shell. Now its second last shell would become its outermost shell, which has 8 electrons. So magnesium will feel stable. However, we would call it magnesium ion, and it will get a charge of 2 positive because previously it has 12 protons and 12 electrons, and net charge over magnesium atom was 0. Now magnesium has lost 2 electrons. So net charge would be +12 -10, that is +2. Any questions so far? सर जब आप मैग्नीशियम आयन का चार्ज होता है तो क्या मैटर करता है कि अगर आप पॉजिटिव साइन आगे या पीछे लगाओ? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन।
meant to discuss this. देखो लिथियम तो प्लस है ना, अब आप 1 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं, वैसे लिखते नहीं है। अगर आप लिथियम कहो कि हम +1 ऐसे लिखें या 1+ लिखें, अगर मैग्नीशियम है तो दिस इज 2 पॉजिटिव, राइट? तो यू आर आस्किंग दैट शुड वी राइट +2 और 2+, और डज इट मैटर और नॉट? देखो इट डजंट मैटर। अगर आप इनमें से कोई भी लिख दो ना, +2 लिख दो या 2+ लिख दो, इट डजंट मैटर, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा आपका एग्जाम में। बट द राइट वे टू राइट इज नंबर फर्स्ट एंड द साइन लेटर, दिस इज द राइट वे। जो बुक्स में और आपको कंटेंट में लिखा हुआ मिलेगा, दैट वुड बी नंबर फर्स्ट एंड द चार्ज लेटर, सही है। बट अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो गलत नहीं होता, जल्दी में हम ऐसे ही लिख देते हैं जल्दी। और अगर +1 या -1 चार्ज है तो उसके साथ आपको 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ प्लस या माइनस लगा के भी छोड़ सकते हो, ठीक है? लिखने की जरूरत ही नहीं होती है 1। तो राइट वे ये है, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। Sir, जी हिबा, बिल्कुल। sir, does the group number affect like how many electrons an atom is gaining or losing? Yes, group number will tell you that number of how many number of electrons are lost or gained by any atom. So it will be identified by group number. So all group 1 elements, they will always lose 1 electron because they have 1 valence electron, and they will always get a charge of +1. All group 2 elements, they will always lose 2 electrons because they have 2 valence electrons. तो ग्रुप नंबर से आपको पता लग जाएगा कि अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 2 का है तो इट मींस इट विल ऑलवेज हैव अ चार्ज ऑफ +2। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 1 का है तो इट विल ऑलवेज हैव अ चार्ज ऑफ +1। Okay, thank you, sir. Sir, यस, what is the maximum number of electrons that an element can or an atom can use? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस शेल ओनली? Yes, sir, in valence shell, like what is the maximum amount of electrons? In O level, the maximum number of electrons any atom can hold is 8, ठीक है? हमारे O लेवल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही होल्ड हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम बनाएंगे जितने भी एलिमेंट्स की, वो सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की है, एंड फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ओनली हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, नॉट मोर देन दैट। लेकिन अगर आप वो बात कर रहे हो कि भाई हमने पढ़ा है कुछ बुक्स में कि सम इलेक्ट्रॉन्स और सम एटम्स कैन होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, लाइक फ्रॉम थर्ड शेल ऑनवर्ड्स 18 इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं, 32 भी आ सकते हैं फोर्थ शेल में, तो वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा ओ लेवल का कोर्स ये कहता है कि नो शेल कैन होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स because the element we'll be dealing with can only have 8 electrons in their outermost shell. क्लियर है? ये बात हमारी पहले भी हुई है, इसको आप कहीं सर्च करके पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, वो 18 भी मिलेगा, 32 भी मिलेगा, लेकिन we will stick to 8 electrons, सही है उस वक्त? और अगर बहुत क्यूरियोसिटी है तो थोड़ा सा पढ़ के फिर किसी दिन क्लास के बाद थोड़ी देर रुक जाना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि वो क्या चीज है। लेकिन वो लेवल में हमें जरूरत नहीं है वो जानने की, लेकिन अगर पढ़ना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है। में ना मैग्नीशियम जो है ना वो डुप्लेट रूल फॉलो नहीं करता। डुप्लेट रूल सिर्फ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन फॉलो करते हैं। आप यही कह रहे हो ना कि मैग्नीशियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, so we have 2 rules for stability, duplet and octet। जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल क्यों नहीं है? मैग्नीशियम इज वन ऑफ दोस एलिमेंट जो कहता है कि नहीं। देखो हमारे पास सिर्फ बोरॉन तक, जिनके एटॉमिक नंबर 5 तक है ना, वो कहते हैं कि सही है, हम 2 में खुश हैं। मैग्नीशियम कहता है नहीं, 2 नहीं चलेंगे, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा अगर मैं कहूँ मैं 2 में स्टेबल हूं, मुझे 8 दिखाने हैं अपने आउटर मोस्ट शेल, ठीक है? वही वाली बात, कुछ लोग
कम में खुश हो जाते हैं, कुछ लोग ज्यादा में खुश हो जाते हैं। ठीक है, मीना मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली इस बात को आपको आगे नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लो कि ये हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, दे वांट टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर वो गेन नहीं कर सकते तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल को लूज कर देंगे, सेकंड लास्ट शेल को अपना आउटर मोस्ट शेल दिखाएंगे, लेकिन वो 8 ही रखेंगे आउटर मोस्ट शेल में स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो हमने ना ग्रुप 1 को डिस्कस किया। जैसे ग्रुप 1 में सोडियम है, इट वाज 2,8,1, इसको हम कह रहे हैं सोडियम एटम। ऑल ग्रुप 1 एलिमेंट्स, अब तो हम एक सोडियम की एग्जांपल ले रहे हैं ना, but you have to remember all group 1 element they loses one electron from the valence shell to form sodium ion, मतलब +1 आइन 2,8, चाहे वो लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो। सिमिलरली ग्रुप 2 में हमने एग्जांपल ली पहले मैग्नीशियम एटम which have 12 protons, 2,8,2. In order to get stable, magnesium also loses 2 electrons. It gets a charge of 2 positive. This becomes 2,8. So all group 2 element, they will always lose 2 electron and they will always get a charge of +2. All group 1 element, they will always lose 1 electron and they will always get a charge of +1. अब चाहे वो सोडियम हो, लिथियम हो, पोटेशियम हो, ग्रुप 2 में चाहे वो मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो, बेरियम हो, स्ट्रोंशियम हो, जितने भी एलिमेंट्स है ना ग्रुप 2 के। सिमिलरली आफ्टर ग्रुप 2 वी हैव ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते तो वो भी लूज है, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, लेकिन वो कितने लूज करते हैं उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। वी आर मूविंग डायरेक्टली टू ग्रुप 3। all group 3 element they loses 3 electrons and they get a charge of +3, like aluminium is from group 3. Its electronic configuration is 2,8,3. So sir, इसका मतलब ये है कि because there are 8 groups, तो इसका मतलब ये कि group 4 में atoms either gain कर सकते हैं या lose कर सकते हैं। Yes, exactly. बताता हूँ। So aluminium is losing 3 electrons, so it will get a charge of 3 positive. All group 3 element they will lose 3 electrons to get a charge of +3. Now coming towards group 4. देखो ग्रुप 4 में लेट्स से वी हैव कार्बन, सिलिकॉन। सिलिकॉन की एग्जांपल लेना, जैसे its atomic number is 14, it has 4 electron in its outermost shell. So now you can say it must have equal chances of either gaining 4 electrons or losing 4 electrons. जैसे चलो सोडियम के लिए मान लिया 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल था, मैग्नीशियम के लिए मान लिया 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल था, एल्यूमिनियम के लिए चलो मान लिया 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने थे, वो भी मुश्किल था। अब सिलिकॉन को तो 4 गेन करना है ना, तो सिलिकॉन ग्रुप 4 के जो एलिमेंट्स है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दे डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाते, नीदर दे लूज 4 इलेक्ट्रॉन, वो लूज भी नहीं करते। तो ग्रुप 4 जो है ना तो वो लूज करते हैं ना गेन करते हैं, मतलब वो आयन ही नहीं बनाते, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अगेन हम उसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, हम ग्रुप 4 को भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। उसमें it depends upon the atom. If it is a group 1 element, तो it can lose 1 electron. अगर आप एल्यूमिनियम की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम ही लूज कर रहे हैं ना, +3। अगर आप ये पूछ रहे हो कि कोई ऐसा एटम है जो कि 3 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी की तरफ जाता हो, तो ऐसे बहुत कम है, वो ग्रुप 4 में ही है, लेकिन वो बहुत रेयरली ये काम कर रहे हो। देखो ये जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है ना,
वो बेसिकली केमिकल रिएक्शन कर जाएगा। ऐसा नहीं है सोडियम एटम ने बैठे बैठे इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, नहीं, जब भी वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो इट मींस के इट हैज टू केमिकली रिएक्ट विद सम अदर एलिमेंट। और जब वो केमिकल रिएक्शन की तरफ जाएगा तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं, लेकिन ग्रुप 4 में कभी कभार कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयर केमिकल रिएक्शन है जिसमें सिलिकॉन या कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें चाहे। तो फिलहाल उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, वो बॉन्डिंग में हम डिस्कस करेंगे कि वो बेसिकली कर क्या रहे होते हैं। तो फॉर नाउ यू कैन रिमेंबर दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनी एटम कैन लूज इज 3। ठीक है, सोडियम वोंट लूज 3 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इट हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोशन, उसको जरूरत नहीं है 1 से ज्यादा लूज करने की। आप जबरदस्ती लूज करवा दो अलग बात है, खुद से वो 1 ही लूज करेगा, उसके आगे लूज नहीं करेगा। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स दे विल ओनली लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उससे ज्यादा वो नहीं करेंगे। ग्रुप 3 के एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं दे विल ओनली लूज 3 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा वो नहीं करेंगे खुद से। क्लियर हुआ? जी सर। ग्रुप 5 में हमारे पास एलिमेंट्स है जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन symbol is N, its atomic number is 7, so its electronic configuration is 2,5. अब नाइट्रोजन it can lose 5 electrons और it can gain 3 electrons। तो ज्यादा आसान काम नाइट्रोजन के लिए ये होता है कि वो बोलेगा मैं पागल थोड़ी हूँ मैं 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं। चलो सोडियम के लिए नहीं था पॉसिबल 7 गेन करना, मैग्नीशियम के लिए नहीं था 6 गेन करना, नाइट्रोजन के लिए पॉसिबल है टू गेन 3 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन लूज नहीं करता। ग्रुप 5 के एलिमेंट्स दे ऑलरेडी हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, तो वो थोड़ी सी मेहनत करते हैं एंड दे गेन इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लूजिंग। तो नाइट्रोजन एटम इंस्टेड ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। Sir, जी, why they don't share electrons? नाइट्रोजन दे आल्सो Uh, शेयर इलेक्ट्रॉन्स। यस। ग्रुप 1 किसकी बात कर रहे हो स्पेसिफिकली पूछो, नाइट्रोजन की बात। nitrogen. नाइट्रोजन कैन डू बोथ, it can also lose electron, नहीं sorry lose तो नहीं करता, it can gain electron and it can also share electron। So means all the elements in group 5 they can also share electrons, right? yes, they can also share electron। वो Okay. डिपेंड करता है कि वो किस चीज के साथ बॉन्ड करने जा रहे हैं, एंड अगेन वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में डिटेल। Okay, thank you, sir. For now we know that nitrogen has 7 protons plus 7 electrons are -7, and the net charge over the nitrogen atom should be +7 -7, that is equals to 0. However, when nitrogen atom gains 3 electrons, the proton will stay +7, electrons would become, it has gained 3 electrons, na? So now total number of electrons would be 10, net charge would be +7 -10, that is equals to -3. We'll write it like this, 3 negative. And can we call it nitrogen atom? इसको हम आइन बोलेंगे ना, आप एटम तो नहीं बोलेंगे। देखो जब पॉजिटिवली चार्ज आइन बने थे हमारे पास, तो सोडियम एटम का जब आइन बना था तो उसको हमने क्या कहा, सोडियम आइन। मैग्नीशियम एटम का जो आइन बना उसको हमने क्या कहा, मैग्नीशियम आइन। एल्यूमिनियम एटम का जो आइन बना उसको हमने कहा एल्यूमिनियम आइन। ठीक है, कोई फर्क नहीं आया स्पेलिंग में। However, when negatively charged ions are formed or anions are formed, there is a slight difference in the spelling of that particular element. So we won't call it nitrogen ion, but it would be called as nitride ion with IDE in the end. ये याद रखना है। I'm not telling you any rule to make the name of it, कि आपने आखिर के लेट्स से OGEN हटाया, 4 लेटर्स हटाया और IDE लगा दिया, वो याद करने की इस तरह से कोई रूल बनाने की जरूरत नहीं है। You just have to remember few names of the ions, तो हम याद कर लेंगे। This is nitride ion. We won't call it nitrogen ion, but it would be called as nitride ion. कैटाइन जब बने पॉजिटिवली चार्ज आइन तो स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, जब एनाइन बनते हैं नेगेटिवली चार्ज आइन तो स्पेलिंग चेंज हो जाती है।
ये ऐसी रूल बनाया हुआ है केमिस्ट्री ने बस अपने। अगर आप कहोगे अगर नहीं भी करते स्पेलिंग चेंज तो क्या फर्क पड़ जाता है केमिस्ट्री में, तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बना चला आ रहा है पीछे से, तो अब यही। So this is nitrogen. It is an anion, but it would be called as nitridine with a charge of 3 negative. So all This- group 5 elements, they will gain 3 electrons to get a charge of -3. कुछ पूछ रहे हो? Sir, this rule is only for group 5 or like for all? For all elements? the elements, they form negative ion. Negatively charged ions are formed by group 5, group 6 and group 7. तो सबकी spelling change होती है. सर अगर हम ये ना भी लिखे तो लाइक असली नाम लिख ले, रियल नेम, से उससे मसला तो नहीं है ना एग्जामिनर को? Real name क्या होगा? नो सर, जैसे ऑक्सीजन है तो उसको हम अगर इसमें लिखेंगे तो ऑक्साइड लिखेंगे तो फिर लाइक फर्क तो नहीं पड़ेगा ना एग्जाम में? ऑक्सीजन का जब आयन होगा तो हम उसको ऑक्साइड बोलेंगे, उसके अलावा कुछ और अगर बोलोगे O2 नेगेटिव आयन को या N3 नेगेटिव आयन को तो वो फिर गलत होगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, देखो बेटा इसको इस तरह से समझो कि कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो कि 2 + 2 4 होता है, ओके, लेकिन अगर हम प्लस को यूं ना लिखें, हम प्लस को जो है वो यूं करके लिखते हैं, सर्किल बना दें, तो आप कहोगे मैंने काम तो ऑपरेशन तो सही किया है ना, 4 ही लिखा है ना, बट ये कोई आइडेंटिफाई तो नहीं कर पा रहा ना कि ये चीज क्या है। तो एक यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी बनी हुई है, यूनिवर्सल रूल बना हुआ है, उसको इसलिए फॉलो करना पड़ता है कि ताकि सभी वही चीज फॉलो करेंगे तो सबको पता होगा कि लिखा हुआ क्या है या किस चीज की बात की जा रही है, राइट। तो कुछ रूल ऐसे हैं जिनके पीछे कोई बैकग्राउंड लॉजिक नहीं होती है, वो चीजों को यूनिवर्सल रखने के लिए, यूनिफाइड रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए सब एक ही चीज यूज करते हैं, और अगर वो हम यूज नहीं करेंगे तो फिर उसको गलत माना जाएगा। And the phosphorus, it is also from group 5. Its atomic number is 15. Electronic configuration is 2,8,3. Sorry, 2,8,5. So phosphorus, it gains 3 electrons in its outermost shell and it gets a charge of 3 negative. And its spelling would become phosphide ion. ये मैं खुद याद करवा दूंगा आपको, अभी आप टेंशन नहीं लो कि किसका नाम चेंज होके क्या स्पेलिंग बन रही है। राइट, आगे बढ़े। जी। Then group 6 elements like oxygen, its electronic configuration is 2,6. It has 6 electrons in its valence shell, group 6 का। It actually gains 2 electron और इसका नाम हो जाता है oxide ion. When it gains 2 electron, it gets a charge of 2 negative, and its electronic configuration becomes 2,8. Similarly, if we move on to group 7, like in group 7 we have chlorine. Its atomic number is 17, electronic configuration is 2,8,7. Chlorine gains 1 electron. All group 7 elements, they gain 1 electron and gets a charge of -1. All group 6 elements, they gain 2 electrons and gets a charge of -2. Chlorine, when gains 1 electron and forms an ion, its name would become chloride ion. It gets a charge of -1 and its electronic configuration would become 2,8,8. Group 8 elements, they do not lose or gain electron. तो group 8 की भी हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, वो जो सल्फेट आयन है ना, वो सल्फर नहीं होता है अकेला, सल्फेट विद ATE और नाइट्रेट विद ATE और नाइट्राइड इवन विद ITE। दिस इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। अभी हम प्रोडक्ट टेबल के एलिमेंट से जो डायरेक्टली आयन बन रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। दीज आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दीज आर डिफरेंट, दीज आर नॉट ion formed by an atom. These are polyatomic ion, मतलब वो SO4 होता है when two atoms they join together and they get an overall charge.
तो वो 8 उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उनकी स्पेलिंग में देखो आखिर में या तो 8 लगाया हुआ होता है या ITE लगाया हुआ होता है. However, if you have IDE at the end of negatively charged ion, it means we are talking about an atom from the periodic table that has just gained some electrons. Like oxygen atom forms oxide ion, chlorine atom forms chloride ion. ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगी चीजें. ये बा Yes, sir. Thank you. ओके. देखो इस चीज को मैं समराइज करता हूँ. In order to get stable elements, atoms of different elements, they either lose electrons or gain electrons. When they lose or gain electron, they form ions. Why they have to form ions? To achieve stability. When any atom gains electron, it forms positively charged ion known as cation. And when it gains electron, it forms negatively charged ion. This is known as anion. Right? All elements from group 1 till group 3, they form cations, and all elements from group 5, group 6 and group 7, they form anion. ठीक है, इसको हम आगे और लिखेंगे बातें. अभी आपको क्या बात याद रखनी है? All elements from group 1, they loses 1 electron and they gets a charge of +1. All elements from group 2, they lose 2 electron and they get a charge of +2. All elements from group 3, they also lose electron, they get a charge of +3. ठीक है? We are not talking about all of these elements between group 2 and group 3. However, they also lose electron, they also form cations. Positively charged ions ही बनते हैं, लेकिन इनका चार्ज क्या बनता है वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, जैसे आयरन है ना, इसमें अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? आयरन atom sometimes loses 2 electrons to form a charge of +2, and similarly iron also loses 3 electrons to form a charge of +3. So it is not kept in group 2 and group 3. ना तो ग्रुप 2 में रखा है इसको, ना ग्रुप 3 में रखा है. इसी वजह से कि ये कुछ और ही हरकतें कर रहा है, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की तरह, दोनों की तरह कर रहा है, तो उसको हमने निकाल के अलग ही कर दिया. ग्रुप 4 को हमने अभी डिस्कस नहीं किया. ग्रुप 5 elements, all the atoms of group 5 element, they gain 3 electron and they get a charge of -3. All the atoms of group 6 element, they gain 2 electrons and gets a charge of -2. Similarly, all the atoms of group 7 element, they gain 1 electron and gets a charge of -1. Group 8, they neither lose or gain electron, तो ये तो कुछ करते ही नहीं. ये बात आपको याद रखनी है. सेकंड चीज जो हमने पढ़ी कि हमारे पास जो कैटाइंस बना रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो बन रहे हैं, उनको कैटाइन कह रहे हैं ना, लाइक फ्रॉम +1 +2 +3, these are cations. Negatively charged ions, group 5 6 7 वाले, these are anions. Right? Secondly, जो कैटाइन बना रहे हैं, जैसे सोडियम एटम है, this would be called as sodium ion. Aluminium atom, this would be called as aluminium ion. Aluminium जो चार्ज बनाएगा, this is aluminium ion. स्ट्रोंशियम ion, जब ग्रुप 2 का है तो इस पे चार्ज +2 आएगा, नाम की स्पेलिंग चेंज नहीं होगी. बेरियम है 2 पॉजिटिव आयन, सीजियम है +1 आयन, फ्रैंशियम है +1 आयन, स्पेलिंग भी फ्रैंशियम आयन कहलाएगा. लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज आयन बना रहे हैं उनमें ग्रुप 5 6 7 वाले, उनकी स्पेलिंग चेंज हो रही है. और कौन से एलिमेंट्स की स्पेलिंग चेंज हो रही है वो आपको स्पेलिंग याद रखनी है. वो बहुत सादा नहीं है, जो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी बस यही आपको याद रखना है. नाइट्रोजन ग्रुप
5 का है तो it will get a charge of -3 and its name would become nitridine with IDE in the end. Phosphorus बनाएगा phosphidine. ऑक्सीजन ग्रुप 6 का है 2 नेगेटिव आइन बनाएगा और इसका नाम हो जाएगा ऑक्साइड आइन. सिमिलरली सल्फर ग्रुप 6 का है, इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड आइन. फ्लोरीन ग्रुप 7 का है, इट विल गेट अ चार्ज ऑफ -1 और इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइड आइन. क्लोरीन ग्रुप 7 का है, इट विल गेट अ चार्ज ऑफ -1 और उसका नाम हो जाएगा क्लोराइड आइन. ब्रोमीन ग्रुप 7 का है, इट विल आल्सो गेन 1 इलेक्ट्रॉन और उसका नाम हो जाएगा ब्रोमाइड आइन. सिमिलरली आयोडीन का आयोडाइड आइन. बस ये याद रखना है, नेगेटिव आइन हो गए. हिबा मैं काम सेंड कर दूंगा बट इट वुड बी बेटर कि आप जो है ना इसको प्लीज 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 लिखा करो क्लास में. अदरवाइज रिकॉर्डेड लेक्चर से देख के लिख लो, क्योंकि अगर मैं सेंड कर दूंगा ना करता रहूंगा तो सब लिखना छोड़ देंगे. लास्ट टाइम भी यही हुआ था, आखिर में किसी के नोट्स कंप्लीट नहीं थे, चीजें छुटी हुई थी. वो बहुत प्रॉब्लम होता है कि ये कहाँ लिखा था, ये कहाँ पढ़ा था. वो इस वजह से होता है कि जब आप सॉफ्ट कॉपी में छोड़ देते हो चीजें तो कुछ फाइल आपने डाउनलोड की हुई है, कुछ नहीं की हुई, कुछ आपने पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी. बेटर कि आप हाथ से लिख लो सारी चीजें. टाइम ले लो बेशक, लेकिन लिख लो. डन.